इसके साइन मैच नहीं आ रहा, उनका अकाउंट नहीं मिला। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि चौथे दौरे की त्रैमासिक रोजगार सर्वे रिपोर्ट अर्थात रिपोर्ट ऑन 4th राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे का विमोचन करने के लिए हमारे मध्य श्रम एवं रोजगार व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के आदरणीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी विराजमान हैं। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री रामेश्वर तेली जी और श्रम एवं रोजगार सचिव श्रीमती आरती आहूजा जी का भी हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं सीनियर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र श्री आलोक चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रारंभिक वक्तव्य दें। सर, वो जैसे कि हमारा आज का कार्यक्रम है कि पहले हम ये लेबर ब्यूरो की क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे को वो रिलीज़ करेंगे, फिर उसके बाद एक और कार्यक्रम है जैसे जैसे हम आएंगे उसके बारे में हम वो जानकारी देंगे। तो सर, अगर जो आपका अनुमोदन हो तो हम ये फिर वो कार्रवाई को चालू करें। सर, ये हमारा अभी तक हमने सर वो 3 क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे निकाले हैं। अब ये मतलब 4th निकालने जा रहे हैं, वो मतलब चौथा है और इसमें कई अच्छी चीज़ें निकल करके आए हैं। तो सर, तो ये चीज़ें तो मैं अपने ये जो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप के अध्यक्ष प्रोफेसर मुखर्जी साहब से कहूँगा कि वो कुछ इसके बारे में जो आवश्यक जो जानकारी है कृपया सबके साथ साझा करें। You should excuse me for a highly congested throat, unfortunately. Honorable Minister, Mr. Jawahar, Minister Mr. Teli, senior officers of the Ministry, officers of the Labour Bureau, representatives of the media, other guests and friends. I'm really glad that we have met to discuss not merely the 4th round report of the quarterly employment survey, which has been completed some time back by the Labour Bureau under the guidance of the Ministry of Labour and Employment, but also to tell representatives of the media how the Labour Bureau has progressed in respect of several other very important surveys which have not been undertaken by any agency in the country, official or non-official. We will also tell the media representatives that beyond the 4th round, for which the report is going to be released today, of the quarterly employment survey, from the 5th round onwards, the work will be slightly expanded. In fact, the schedule also will be slightly modified so as to capture some more relevant information items. The sampling design also is slightly modified to take advantage of the fact that beyond the classical EC6 list of establishments with 10 or more workers, we will have an augmentation of that list frame by some currently available lists in respect of manufacturing, health and education sectors. So that way some modifications by way of improvement will also take place in respect of the quarterly employment survey from the 5th round onwards. We are going to present the report for the 4th round today, but from the 5th round there will be some improvement in coverage with a change in the sampling design and with certain associated improvements or modifications. There are agencies, this is not your official, which come up with even quite frequent pictures of the economic situation in the country, like even monthly rates of employment or annually by some other agency. They are not always compatible with one another. Nothing surprising. Not to blame any of the agencies that they have not done a good quality work. It's quite natural because of the differences in definition sometimes, and more importantly, in the differences in approach. How do they characterize a person to be employed? That also differs from one survey to another. It should not have happened that way, but it has.
it has been. And therefore, it will be very, very unwise to jump to the conclusion that this report is more convincing than it is not. That will be a completely wrong appreciation of the reports by different agencies. Anyway, the Labour Bureau was involved in conducting quarterly employment surveys even earlier, not because those reports were found to be useless, that they were somehow stopped in between. They were also quite useful, but in a slightly better way, we started doing the quarterly employment survey as a component, as one very important component of what has been branded as the All India Quarterly Establishment-Based Employment Surveys, abbreviated as AQEES. The other component, which is also going on, is the Area Frame Establishment Survey. The first component, for which the report of the fourth round will be pressed today, or the Quarterly Employment Survey, has been restricted in terms of its coverage to establishments with 10 or more workers in 9 important sectors, including manufacturing, trade, education, health, accommodation and restaurant, IT and BPO, construction, etc., which accounted for more than 85% of the total employment during the 6th economic census. We could not have access to the 7th economic census data. The 7th economic census was completed a couple of years back, but the data have not yet appeared in the public health sector, which will account for a very large majority of all the healthcare units. That will also make use of from the 5th round of the answer. We are also trying to see whether from the Ministry of Education we can get hold of a similar list which can augment or completely replace, either way, the EC6 frame on educational establishments. This will help us to draw samples from a list frame which is more current than the 13-14 economic census. With 3.08 crores of workers on the reference date. This was the estimated number, of course, on January 1, 2021. We have a figure for 3.18 crores estimated total number of workers in these 9 sectors on January 1, 2022. So that is a gain of 10 lakhs or 1 million. We had reported even in the third quarter more than 1.5 lakh vacancies. The number of vacancies in the third round was higher, it has come down. So that way some vacancies have been filled up, some new positions have been created, and that accounts for the increase in employment from January 1, 2021 to January 1, 2022 by 10 lakhs or roughly 1 million. This is the terms of the estimated number. So the rough figure for the fourth round was, as I said, 3.18 crore workers in 5.31 estimated number of establishments. With an overall average that of course makes little sense of 60 workers per establishment. 60 workers per establishment, and overall average, I repeat, that makes little sense because in terms of the size class, we have a wide variation among the current establishments as we expect. Manufacturing, followed by education, followed by IT and BPO, followed by health. They account for 83% of the total workforce in all these 9 sectors. 38% in manufacturing, 22% in education, information and BPO take care of 12%, and health takes care of 11%. 38, 22, 12 and 11, making a total of 83% of the total workforce in the 9 sectors covered by the quarterly employment survey will be accounted for by these 4 sectors. So that way we have a picture that is not at all dismal, a bit heartening, that even during the period affected by the pandemic, we are having some growth in total number of establishments,
as also total employment. We hope that employment will definitely increase. The important point that definitely distinguishes this survey from the household-based surveys conducted by MOSPI, conducted by some non-official agencies about employment and unemployment. The household-based surveys cannot provide us, in terms of a planned exercise, data in respect of each sector or each type of economic activity, as we are doing. They survey households and that way indirectly get data on different sectors, not in terms of a plan, but in terms of incidentally getting ideas about different sectors in which people are involved. Whereas here we are having a sampling design that takes care of these 9 sectors and looks to it how people have been engaged with it. So these two designs, a household-based survey and an establishment-based survey, are quite different in terms of providing pictures about the employment market. This should be kept in mind at the back of anyone who tries to analyze any discrepancies or any similarities between data on employment that arise from household-based surveys on the one hand and establishment-based surveys on the other. And since in this ministry they want to come up with figures which will help policy making in different sectors of the economy, which these are different policies, different interventions. Therefore, we want by design, by plan, not incidentally, data regarding different sectors. That's where the importance of establishment-based surveys over household-based surveys is there. The definitions of employer parties will not arise here, because here we are getting people who are actually working in an establishment, rather than giving different definitions characterizing a person as employed or unemployed, as definitely makes difficult for us to assess the findings of any household-based. बनाने के लिए करेक्ट डेटा होना और करेक्ट पिक्चर होना बहुत आवश्यक होता है। करते आए हैं हम सब सुनते रहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, फॉर रूरल वर्कर्स, ये सब लेबर्स ब्यूरो जो है इस मंत्रालय का वो करता आया है। तो एक तरह से एक इंटरनेशनल छाप है इस ब्यूरो की। आप वैसे भी जानते हैं कि इंडिया का जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम है वो पूरे विश्व में बहुत माना जाता है, क्योंकि आर वे ऑफ डूइंग सर्वेज इज वेरी वेल इनग्रेन्ड। इट फॉलोज अ स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न, इट इज रैंडमाइज्ड, सो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट प्रॉपर डेटा इज पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेटिस्टिकल सिस्टम। और लेबर ब्यूरो द्वारा जो सर्वेज अभी तक आते रहे हैं वो प्रमाणित है कि दे हैव बीन ऑथेंटिक एंड दे हैव बीन गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी मेकर्स। आज जब हम पूरे देश में एक विजन की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि 2047 में हमारा देश कैसा रहेगा, उसका विजन क्या रहेगा, तो उसके लिए आज हम कहाँ पे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। और उसी संदर्भ में प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया कि अन्य सर्वेज होते हैं, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वेज मॉस्पी करता है। ये जो सर्वे है ये एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे है, वो भी सिंगल एस्टैब्लिशमेंट जो एक ही जगह पे लोकेटेड है, उनकी और कहीं प्रेजेंस नहीं है। तो और 9 अलग अलग सेक्टर्स भी हैं। ये जो 9 सेक्टर्स हैं ये लगभग 90% जो वर्क फोर्स है इन्हीं सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है। इसीलिए ये जो सर्वे है आज का, उसके रिजल्ट्स इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हम इनमें से क्या निकाल सकते हैं? नंबर 1, ये ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। कोविड काल में हम सब ने देखा कि द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज्ड। बहुत लोग जो थे वो एम्प्लॉयमेंट से शायद बाहर आए, बहुत लोग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट में भी गए। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट 4 क्वार्टरली सर्वेज। एक तो वो पॉइंट है। दूसरा, हम बहुत सुनते आते हैं दैट ग्रोथ हैज़ टू बी मैन्युफैक्चरिंग लेड। मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ क्रिएट्स जॉब्स, एंड दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग इन दिस सर्वे, that manufacturing is the largest employment provider among the
different sectors that have been surveyed by the Labour Bureau. तीसरी चीज हम इसमें देख रहे हैं that formalization of the economy. लगभग 61% establishments have been covered under the GST Act, which is a huge achievement, I would say, and this independent survey shows us that. Nearly, and I'm also happy to note and tell you also that female participation जो है वो फर्स्ट क्वार्टरली सर्वे में जो कि 29.3% था, इस सर्वे में वो 31.77% तो काफ़ी बड़ा है। ये भी हमारे लिए एक खुशी की बात है। एक और चीज़ जो हमें नोट करनी चाहिए इस सर्वे में वो ये है कि जब हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सिंगल एस्टैब्लिशमेंट्स जो हम देखते हैं वो 10 to 39 वर्कर्स को एम्प्लॉय करने वाले हैं। इसका भी मतलब हुआ दैट दे आर साइजेबल एस्टैब्लिशमेंट्स। लेस देन 10 वर्कर्स वाले एस्टैब्लिशमेंट्स कम होते गए हैं और इस श्रेणी के एस्टैब्लिशमेंट्स बढ़ गए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट देयर इज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, देयर इज growth in employment, there is growth in female workforce participation in the economy. So I'm sure you will be able to draw your own conclusions about that. In the end, I would like to thank the Labour Bureau and Professor Mukherjee in particular and the team which have come out with this. Thank you. नमस्कार। माननीय केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रीमती आरती आहूजा जी सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आलोक चंद्रा जी वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार, IAS नेगी जी महानिदेशक श्रम ब्यूरो, SP मुखर्जी जी चेयरमैन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन ऑल इंडिया सर्वे, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए साथीगण तथा भाई और बहनों, श्रम ब्यूरो मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यालय है तथा श्रम ब्यूरो के द्वारा तैयार की गई तिमाही रोजगार सर्वे की चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी करने के आज की इस अवसर पर मुझे खुशी हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि वे सर्वे से 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था, वह अभी तक 3 तिमाही की सर्वे रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। QS सर्वे की चौथी तिमाही 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक की रिपोर्ट आज जारी की जा रही है। लाभकारी रोजगार सृजन समानता के साथ विकास करने और गरीबी को दूर करने का आधार होता है। इसी संदर्भ में प्रतिष्ठान आधारित अखिल भारतीय तिमाही रोजगार सर्वे के एक घटक के रूप में QS एक स्थापना आधारित सर्वे है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 9 चयनित क्षेत्रों जैसे निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्टोरेज, IT, BPO तथा वित्तीय सेवाओं में 10 या उनसे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में रोजगार का तिमाही अनुमान प्रदान कराना है। यह सर्वे रोजगार के लिए तिमाही अनुमान के साथ साथ कौशल विकास, ऋतिकों की स्थिति, भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता रहा है, जिससे मंत्रालय स्तर पर बेहतर पॉलिसी निर्णय लेने में मदद मिलती है। श्रम ब्यूरो का यह सर्वे इस मामले में अनूठा है क्योंकि नियोजन और नीति उद्देश्यों के लिए रोजगार की महत्वपूर्ण मानकों को तिमाही आधार पर लिया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्रम ब्यूरो नियमित रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सूचकांक का संकलन कराता रहा है। अंत में मैं श्रम ब्यूरो एवं रोजगार मंत्रालय और लेबर ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी चौथी तिमाही का सर्वे समय पर पूरा करने, रिपोर्ट की रिलीज करने के अवसर पर बधाई देता हूं। साथ मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, विभाग की सचिव श्रीमती आरती आहूजा जी, इस हमारी एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर एस.पी. मुखर्जी जी, विभाग के अधिकारी, मीडिया के साथ, आज से सही 1 साल पहले हमने फर्स्ट रिपोर्ट जारी करी। अभी तक हमारे देश में रोजगार के क्षेत्र में जो सर्वे था वो सप्लाई साइड में PLFS का कार्यबल की कितनी उपलब्धता है और कार्यबल को कितना रोजगार दिया गया है। लेकिन लेबर ब्यूरो के इस इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे के आधार पे हमने डिमांड बेस्ड सर्वे को हर तिमाही प्रकाशित करना शुरू किया और इसलिए जो एग्रीकल्चर के अतिरिक्त 9 क्षेत्र हैं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, IT है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है, इन सब क्षेत्रों में डिमांड कितनी बड़ी है। प्रोफेसर मुखर्जी ने पिछले सर्वे में भी बहुत डिटेल में लिखा था कि हमने 2013-14 को इकोनॉमिक सर्वे का ईयर क्यों घोषित किया, और ये सर्वे इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है जो संस्थागत रूप से 10 और उससे ज़्यादा जहां पर एम्प्लॉय है। सो ये अर्थव्यवस्था के एक भाग का सर्वे और उसका ट्रेंड ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में भी रोजगार में वृद्धि हो रही है। जैसा कि प्रोफेसर मुखर्जी ने भी अपने डाटा में बताया है कि 3.14 से 3.18 हम लोग गए हैं। इवन कोविड के कार्यकाल में भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में वृद्धि हुई। और इस बार जो सबसे अच्छी बात इस क्वार्टरली सर्वे में है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम वृद्धि देख रहे हैं, जो एक अच्छा ट्रेंड है। हमारे लेबर ब्यूरो के अधिकारी कभी आपको बहुत विस्तार से भी बताएंगे। जो NCS पोर्टल हमारे देश का है, उसमें हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने नए 143 YP रखे हैं, 300 से ज़्यादा पोर्टल को रिस्ट्रक्चर किया है। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो 26 सितंबर को मेरे अधिकारी यहाँ अमित निर्मल जी, आलोक जी, विभा जी बैठे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट ने डाटा तैयार किया है कि हमारे NCS पोर्टल पे 26 सितंबर 2022 को, जिसको एक्टिव वैकेंसी कहते हैं, वो 4 लाख मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2.5 लाख से जंप लगा करके ये सबसे मैक्सिमम जो एक्टिव वैकेंसीज है क्रिएट है। तो अगर हम लेबर ब्यूरो के मैन्युफैक्चरिंग में जिसको स्ट्रक्चर्ड एरिया उसके ग्रोथ को और NCS पोर्टल पे जो डिमांड को अगर मिलाकर देखें तो देश में रोजगार का एक बहुत पॉजिटिव वातावरण है। प्रोफेसर मुखर्जी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और एक लंबे समय से प्रोफेसर रहे हैं। कई विषय उनसे हम स्टैटिस्टिक्स के जानते और समझते भी हैं। और वो हमेशा सर्वे के बारे में एक चीज़ पे बहुत उनका स्ट्रेस रहता है, ऑथेंटिसिटी पे, ट्रांसपेरेंसी। और इस बार भी जब हाउस होल्ड सर्वे करें तो मोर देन उन्होंने हाउस होल्ड सर्वे का एक बहुत
सिस्टम उन्होंने तैयार किया, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ये सर्वे में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट इश्यूज को हमारे सामने रखा है। एक जो सबसे बड़ा विषय है सर्वे को जब हम देखते हैं तो देश में रोजगार का क्षेत्र रोजगार की दिलाने की दृष्टि से तो है ही, पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में महिलाओं का कितना योगदान हम कर सकते हैं वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसलिए अभी जो 4th क्वार्टरली रिपोर्ट का जो भी ट्रेंड आया है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी 31.6 से बढ़कर के 31.8 हुआ है। ये भी इस बात को दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो वुमेन वर्कफोर्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन हो रहा है। ये रिपोर्ट जारी होने के बाद ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगी और ये आप लोगों के लिए देश के रोजगार को अध्ययन करने के लिए, जो हमारी सेक्रेटरी साहब ने उतारी थी, पॉलिसी मेकिंग के लिए, एकेडमिक्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के रूप में है। एंड इन द एंड आई वुड like to conclude with deep appreciation for the consistent exemplary effort being put in by senior officers of the Ministry of Labour and Employment and Labour Bureau and their entire teams, culminating in uninterrupted availability of useful, reliable and up-to-date statistics in the field of labour. I wish them success in their future endeavour as well. दो चीज़ें और हैं, ये अभी लंबे समय से पत्रकार मेरे से पूछते थे, ये तो इंस्टीट्यूशन बेस है, एरिया बेस कब तक है? एरिया बेस लगभग हमारा पूरा हो गया एंड ऑफ दिस ईयर। सो उसके बाद अभी तो जो इंस्टीट्यूशन बेस 10 और उससे ज़्यादा है एंड ऑफ दिस ईयर से, क्योंकि प्रोफेसर मुखर्जी कह रहे हैं बहुत, तो इस बार से मिस्टर नेगी भी यहाँ पर है। हम एरिया बेस भी देंगे, जो इसमें एरिया बेस जो है 10 से नीचे के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हम इस दिसंबर से क्वार्टरली शुरू कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ लेबर ब्यूरो जो माइग्रेंट वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर का ऑलरेडी हमारे उनके सर्वे चल रहे हैं वो भी हम इस साल में आपको देंगे। और पुनः आप सबका धन्यवाद, आभार, थैंक यू। सर 1 मिलियन जो पहले ये ऑफिशियल बता दीजिए सर, थोड़ा सा 10 लाख जो क्रिएट हुए हैं तो पहले कितना था और अब कितना हुआ है? The estimated total employment in these selected 9 sectors as on January 1, 2021 was 3.08 crore, right? And the same estimated total employment as on January 1, 2022 in the same sectors and more or less the same set of establishments, more or less, except 1 or 2 which were casualties, stood at 3.18 crores. Thank you so much. So again of 10 lakhs or 1 million I said. Thank you so much.